So this is the second part of the video. So we are continuing with the rest of the questions. So here is a diagram based question where the question says study the given diagram and answer the question. So here is a diagram of a particular thallus is shown, and we have with the labeling A and B. So this is a thallus means the plant body of a particular plant that belongs to the division of bryophytes. So the first question is identify the specimen. So we have to identify the specimen, means we have to write the name of the specimen, from which division of the plant this belongs. तो किस division से ये belong करती है तो वो हमने बताना है. So the specimen name is Markensia. So here multi-lobed structure is there where and with the apical notch is there, and here the Gamicup is present. So the name of the structure is Markensia. So here the spellings are Markensia, structure of Markensia. Because it is a scientific name, so you have to underline this name, and Markensia is a name of genus, so the first letter should be capital. So here to which class this which division this specimen belongs? So this belongs to Markensia, belongs to the division of Bryophyta. Division of Bryophyte. Next is label A and B part. So here two parts are there, A and B. So A is apical notch. Apical जो अपर पार्ट है, एपिकल पोर्शन है, उसकी नॉच गिवन है. सो दिस इज एपिकल नॉच, एंड बी इज signifying the circular parts. So these are the gamicups. So the A part is here, the spellings of both. A is equals to apical notch, B is gamicups. Next is how does vegetative reproduction done by this plant? So vegetative reproduction means it's a reproduction through the any vegetative parts, mean flower के अलावा कोई भी और part के through reproduction उससे new plant का उग जाना, that is vegetative reproduction. Here a specialized structure is produced on this plant, that is gamicup. So these are the structures where the tissue detach from its the parent plant body, and on detachment that grows into a new plant. तो यहाँ पे ये जो गैमी कप्स होते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बहुत स्मॉल होते हैं. यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो ये थोड़े हमें बड़े दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें मतलब बहुत स्मॉल होते हैं. तो ये गैमी कप्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और जब ये अलग हो जाते हैं प्लांट बॉडी से, ठीक है, तो एक नया प्लांट जो है वो ग्रो होता है वहाँ से. सो दीज आर द गैमी कप्स जो कि हेल्प करते हैं इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. So next question is here the question of heterospory, that is formation of two type of spores, that is microspores and megaspores, is a characteristic feature in the life cycle of few members of pteridophytes and all spermatophytes. So we have to explain this. यहाँ पे क्या बात की गई है, हेट्रोस्पोरी की बात की है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका. सो द वर्ड हेट्रोस्पोरी मीन्स so here the word heterospory means,
सो वर्ड दो टाइप से, मतलब कि दो वर्ड से बना है. हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड स्पोरी मीन्स स्पोर्स. तो इनमें क्या होते हैं, टू काइंड्स के स्पोर्स होते हैं ना. स्पोर्स हमें पता है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो कि आगे प्लांट को जो है वो फॉर्म करते हैं. तो दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक होता है मेगास्पोर जो यूजुअली फीमेल होगा, मेगा मीन्स लार्ज साइज, एंड एक होता है माइक्रोस्पोर दैट इज यूजुअली मेल, जो मेल को रिप्रेजेंट करता है. तो आपने ये बताना है कि इसकी एक्सप्लेनेशन में आप इसका सिग्निफिकेंस बताओगे कि ये क्या है. तो पहले क्या होता था दैट बिफोर, ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ये जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स का बताया गया है. ठीक है, तो उससे पहले क्या होता था कि स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे लेकिन सिंगल तरह के ही होते थे, मेगा माइक्रो नहीं होता था. इसका क्या सिग्निफिकेंस है, दिस हैबिट द हेट्रोस्पोरी लीड्स टू सीड फॉर्मेशन. जब एवोल्यूशन हुआ तो डायरेक्टली सीड नहीं बना प्लांट्स के अंदर कि एक प्लांट्स बन गए जिसके अंदर सीड थे, नो. सो दिस हेट्रोस्पोरी लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन. पहले स्पोर्स बने, फिर वो स्पोर्स दो तरीके के हुए, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया और यही मेगास्पोर आगे जाके जो है वो सीड बन गया. सीड के आगे सीड हैबिट की जो फॉर्मेशन है वो शुरू करती. हमने सीड देखा होगा कि तो सीड के अंदर मेनली क्या होते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, मेल स्ट्रक्चर्स नहीं होते वहाँ पे. ठीक है, तो सीड प्रेजेंट भी कहाँ पे होता है, फीमेल पार्ट में ही होता है. और व्यूल जो होता है वो आगे जाके सीड बनता है. ठीक है, तो वो सारा फीमेल में. तो फीमेल कहाँ से आ गया, मेगास्पोर से. सो हेट्रोस्पोरी का सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट लीड्स टू द सीड फॉर्मेशन हैबिट. सो टुमारो, सो फॉर टुडे दैट इज़ इनफ. आज हमने सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. हर तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया है. ठीक है, टेबल फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. इस चैप्टर के अंदर जो रह गए हैं वो लाइफ साइकिल्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू हमारा करेंगे लाइफ साइकिल्स. आज के लिए जो भी हमने आज किया है तो उसको एक बार हम देख लेते हैं. तो आज हमने वही ये चैप्टर हमने कल से ही शुरू किया था जिसके अंदर ये वाले जो क्वेश्चंस थे हमारे वो हो गए थे. आज हमने जो है वो मेनली जो लास्ट वाली क्लासेस हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, उनको भी कंप्लीट किया है. ठीक है, अलॉन्ग विद जो हमने जो हमारी एल्गी जो फर्स्ट क्लास है उसके भी एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देखा है. ठीक है, हर पॉसिबल वे से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने आपको करवाए हैं. ठीक है, हमारा इस चैप्टर के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रह गए हैं. डायग्राम कैसे ड्रॉ कौन सी आ सकती है वो हमारा रह गया, और ग्राफिकल लाइफ साइकिल्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे. तो अब आ जाएं कि आपने होमवर्क के लिए क्या क्वेश्चंस करने हैं. तो राइट योर होमवर्क क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन is how three different classes of algae different from each other on the basis of first presence of pigment. तो आपने बताना है पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट है. लाइक क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है वो सभी में प्रेजेंट है, तो यू कांट राइट दैट पिगमेंट इन दिस आंसर. तो you have to mention only those pigments which are different, extremely different from each other. Second, mode of reproduction. This is the first question. Second,
some pteridophyte need water for reproduction, but still they called as land plant. तो उनको लैंड प्लांट्स क्यों बोला जाता है, ये भी हमने देखा क्यों. उनका स्ट्रक्चर देखो, कौन से टिश्यूज ऐसे प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो उन्हें लैंड के ऊपर ग्रो करने के लिए ज़्यादा बेटर सूटेबल बनाती हैं. ठीक है, तो ये हमने चीज़ें बतानी है. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क. थैंक यू वेरी मच.